ٹرمینل 1 سے جو پرواز ان کو ملی اس میں بھی عثمان شبیر ساتھ ہی تھے۔ اپنی داستان حیات فراموش کر کے وہ اب ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کا انٹرویو کرنے لگے۔ کون ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ کیوں آئی ہو؟ ترکی میں کہاں جانا ہے؟ کیوں جانا ہے؟ سبانجی یونیورسٹی جانا ہے، انہوں نے اتنی بلند آواز میں دہرایا کہ اگلی نشست پر بیٹھی ترک خاتون نے گردن موڑ کر قدرے اونچے ہو کر ان کو دیکھا۔ سبانجی؟ اس سے آگے خاتون نے قدرے ستائش سے چند ترک الفاظ کہے جو حیا کو سمجھ نہ آئے۔ جواباً عثمان شبیر نے اپنی بھاری بھرکم آواز میں کچھ کہا تو وہ خاتون قدرے گڑبڑا کر واپس رخ موڑ گئی۔ آپ نے ان کو کیا کہا؟ حیا نے کڑی نگاہوں سے انہیں گھورا۔ کچھ نہیں، تم بتاؤ، یہ پاکستان میں والدین اتنے آزاد خیال کب سے ہو گئے ہیں کہ جوان بچیوں کو اکیلے ترکی بھیج دیا؟ اکیلے نہیں ہیں ہم، پورا گروپ ہے۔ ہم 2 اسٹوڈنٹس ہیں، باقی فیکلٹی ممبران جو 2 روز قبل روانہ ہو چکے ہیں، مگر انہوں نے تو جیسے سنا ہی نہیں۔ خیر، اب اکیلی جا رہی ہو نا، خیال رکھنا کہ… اور پھر ان کا واز شروع ہو گیا۔ نماز پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، پردہ کیا کرو، سچ بولا کرو، اللہ سے ڈرو۔ غرض ہر وہ بات جو اپنے بیٹے کی تربیت کے وقت انہیں بھول گئی تھی اب اچانک یاد آ گئی۔ حیا نے قدرے جھنجھلا کر رخ پھیر لیا۔ دوپہر 2 بجے کھڑکی کے اس پار نیچے، بہت نیچے، وہ بہت خوبصورت سا منظر پھیلنے لگا۔ مرمرا کا سمندر، اوپر بادل اور برف، یوں جیسے نیلی چادر پر سفید روئی کے گالے تیر رہے ہوں۔ جان سکندر کا ترکی اس کے قدموں تلے تھا۔ یہ رکھ لو۔ پرواز اترنے کا اعلان ہونے لگا تو نہایت زبردستی عثمان شبیر نے اپنا وزٹنگ کارڈ اسے تھمایا۔ اس پہ میرے گھر، سیل اور آفس کے نمبرز لکھے ہیں۔ کبھی کبھار میں گھر پر نہیں ہوتا اور کبھی کبھار میرا سیل بھی آف ہوتا ہے، مگر آفس کے نمبر پر میں ہمیشہ ملتا ہوں۔ میری سیکرٹری کی فضولیات سے بچنے کے لیے ڈائریکٹ میری پرائیویٹ ایکسٹینشن ڈائل کرنا، وہ ہے 14 یعنی 14، کیونکہ میری اور پاکستان کی تاریخ پیدائش 14 اگست ہے، اس لیے رکھ لو، ضرورت پڑ سکتی ہے۔ عثمان شبیر سے بمشکل جان چھوٹ رہی تھی۔ ان کو کبھی کال کرنا یا دوبارہ ملاقات کا تصور ہی حیا کے لیے سہانے روح تھا۔ پھر بھی ان کے اصرار پر اس نے اپنی سنہری پاؤچ میں وہ کارڈ بغیر دیکھے رکھ لیا۔ اتاتürk انٹرنیشنل ایئرپورٹ استنبول کے یورپی طرف واقع تھا۔ یہ اسے بعد میں علم ہوا تھا۔ البتہ جو بات ہمیشہ سے معلوم تھی وہ یہ تھی کہ استنبول واحد دنیا کا وہ شہر ہے جو 2 خطوں کو باہم ملاتا ہے، یورپ اور ایشیا۔ استنبول کے 2 حصے تھے، ایک یورپی طرف کہلاتا تھا اور دوسرا ایشیائی طرف یا اناتولین طرف۔ اناتولین طرف کو حرف عام میں پرانا شہر بھی کہا جاتا تھا۔ وہ دونوں جب اپنے سامان کی ٹرالیاں دھکیلتے آگے آئیں تو رومی فارم کے ارکان ان کو مل گئے جو انہیں لینے کے لیے ہی آئے تھے۔ رومی فارم ایک ترک NGO تھی جو بالخصوص ایکسچینج اسٹوڈنٹس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ 2 لڑکے تھے، احمد اور چغتائی۔ چغتائی نام تو ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا، جیسے مصور عبدالرحمن چغتائی ہے نا حیا؟ DJ نے سرگوشی کی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ بہت گرم جوشی اور احترام سے ملے۔ چغتائی نے ان سے بیگ لے لیے۔ آئیے باہر، گاڑی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ چغتائی برادرز، پلیز پانی پلا دیں، بہت پیاس لگی ہے۔ حیا کی طرح DJ بھی پیاس سے بے حال تھی۔ چغتائی نے سر اس بات میں ہلایا اور احمد کے ساتھ سامان اٹھانے لگا۔ پھر وہ دونوں ان کے آگے چلتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گئے۔ بے حد مہمان نواز قوم کے اس سپوت نے ان کو پانی کیوں نہیں پلوایا؟ یہ معاملہ وہ ساری زندگی حل نہیں کر سکی۔ کبھی امکان یہ تھا کہ چغتائی کی انگریزی زبان کمزور تھی، جس کے باعث وہ ان کا مدعا سمجھ نہیں پایا۔ باہر نکلنے سے قبل انہوں نے اپنی رقم ترک لیرہ اور یوروز میں تبدیل کروا لی تھی۔
1 लीरा पाकिस्तानी 55 रुपए का था और 1 यूरो 125 रुपए का। 55 125 55 125। डीजे ज़ेरे लब करेंसी की मालियत का हिसाब लगाती और उनकी कीमत याद करती बाहर आई थी। एयरपोर्ट का दरवाज़ा खुलते ही सर्दी की एक यख बस्ता हड्डियों में घुसती खून मुंजमद करती लहर ने उनका इस्तकबाल किया कि चंद लम्हों में हया के होंठ नीले पड़ने लगे। यहाँ मरी और अयूबिया की सर्द तरीन हवाओं से भी कई गुना सर्द हवा चल रही थी। हया ने बेइख्तियार बाजू सीने पर लपेट लिए। वो ठिठुरने लगी। उनका सामान खासा वजनी और बेतहाशा था। दोनों लड़के सुरमई रंग की हाईएस में बैग्स रखते रखते हाँप रहे थे। आप वाकई सिर्फ 5 माह के लिए आई हैं? चुगताई ने सादगी से पूछा तो अहमद ने उसे घूर कर मौजू बदल दिया। हमारी रिवायत है कि जो भी अतातुर्क एयरपोर्ट से इस्तांबुल आता है, हम उसे सबसे पहले सुल्तान अबू अयूब अंसारी के मज़ार पर ले जाते हैं। इससे उनका तुर्की में क़याम बहुत अच्छा गुजरता है। अहमद कहकर बैग गाड़ी में रखने लगा तो डीजे ने सरगोशी की, मगर हया, ये तो तोहम परस्ती और शिर्क। उसने जोर से कोहनी मारकर डीजे को खामोश कराया। फिर अंदर बैठते हुए दबी आवाज में घर का, मेजबानों से इस सर्दी में बहस की तो वो तुम्हें यहीं छोड़ जाएंगे, पागल। सुबह तक मुंजमद होकर पड़ी होगी और आइंदा तुर्की आने वाले सबसे पहले तुम्हारे मुंजमद मुजस्मे की जियारत किया करेंगे। अहमद को टूटी फूटी अंग्रेजी आती थी, सो वो सारा रास्ता गर्दो पेश के मुतालिक बताता रहा। हया को इस सफरनामे से कोई दिलचस्पी ना थी, सो रुख फेरे खिड़की से बाहर देखती गई। वो जो अमरीकी फिल्मों वाली बुलंदो बाला इमारतों की आस लगाए बैठी थी, कदरे मायूस सी हुई, क्योंकि इस्तांबुल शुरू में तो यूं लगा जैसे इस्लामाबाद हो, मगर आहिस्ता आहिस्ता गौर करने पर महसूस हुआ कि नहीं, वो वाकई यूरोप था। दुकानों के चमकते शीशे, साफ सुथरी सड़कें, मगरबी लिबास, दुकानों की छतों और दरख्तों के ऊपर पड़ी बर्फ और सड़क किनारे बिछी बर्फ की तहें गोया सफ़ेद घास थी। अजीब बात यह थी कि उस सर्दी में भी तुर्क लड़कियां बहुत मज़े से मिनी स्कर्ट्स में मलबूस इधर उधर घूम रही थीं। खुदा करे आज रात बर्फ ना पड़े, चुगताई ने मोड़ काटते हुए एक पुरतशवीश निगाह बाहर फैले बर्फजार पर डाली। हाँ, खुदा करे आज रात वाकई बर्फ ना पड़े, अहमद ने तायीद की। हया और डीजे ने एक दूसरे को देखा और फिर डीजे आहिस्ता से उर्दू में बुड़बुड़ाई, एवे ही ना पड़े, खुद तो बर्फबारी देख देकर उकता चुके हैं, हमें तो देखने दें। अल्लाह करे रात बर्फ जरूर पड़े, आमीन सुम्मा आमीन। और हया ने दिल में उसकी तायीद की। विंड स्क्रीन के उस पार यूरोपियन शहर का इख्तिताम दिखाई दे रहा था। आगे नीला समंदर बह रहा था और उसके दूसरी तरफ इस्तांबुल का एशियाई हिस्सा आबाद था। दोनों हिस्सों को एक अजीमुशान पुल ने जोड़ रखा था, 2 खित्तों का मिलाप, 2 तहजीबों का संगम। मरमरा का समंदर, जिसका हिस्सा इस्तांबुल के दरमियान से गुजरता है, इसे बॉस्फोरस का समंदर कहते हैं। इस पुल का नाम भी बॉस्फोरस ब्रिज है, अहमद बताने लगा। मगर हम तो मज़ार पर जा रहे थे ना, जो कि यूरोपियन हिस्से में ही है। फिर पुल अबूर करने का मकसद? करीब आते पुल को देखकर हया ने हैरत से पूछा, क्योंकि पुल के इस तरफ अनातोलियन शहर था। हमने पुल अबूर नहीं करना, उसके करीब से किसी को उठाना है। हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे, आगे मज़ार तक आपको उसी ने लेकर जाना है। चुगताई ने गाड़ी एक तरफ रोक दी। अहमद अब लॉक खोलकर बाहर निकल रहा था। हया ने इस खूबसूरत ऊंचे पुल को देखा और सोचा कि कितने बरस वो इसी पुल से गुजरा होगा। कितनी ही दफा उसने बॉस्फोरस के नीले पानियों पर चांद की परी को रक्स करते देखा होगा। जब वो उससे मिलेगी तो क्या उसकी आंखों में इस्तांबुल की सफ़ेद घास सी बर्फ जमी होगी
या मरमरा के पानियों का जोश होगा, और क्या वो कभी उससे मिल पाएगी? इस ख्याल से उसका दिल जैसे मरमरा के समंदर में डूबकर किसी लुटी फुटी कश्ती की तरह होले से उभरा। खिड़की के उस पार से एक दराज कद लड़की कार की तरफ चली आ रही थी। चेहरे के गिर्द स्कार्फ लिपेटे, ब्लू जीन्स के ऊपर घुटनों तक आता सफेद कोट पहने, वो कोट की जेबों में हाथ डाले सर झुकाए चलती आ रही थी। उसकी रंगत इस्तांबुल के सूरज की तरह सुनहरी और आंखें बोझल बादलों की मानिंद सुरमई थी। वो लड़की उन दोनों तुर्क लड़कों के पास आई और मुस्कुराते हुए चौथाई के हाथ से चाबी ले ली। रहमत पीछे खड़ी हाइस के जानिब इशारा करके कुछ कहने लगा। वो लड़की अपनी नरम मुस्कुराहट के साथ सर हिलाती सुनती गई। फिर वो दोनों चले गए और लड़की कार की तरफ आ गई। दरवाजा खोला और ड्राइविंग सीट पर बैठकर गर्दन पीछे घुमाई। सलाम वालेकुम और तुर्की में खुश आमदीद। उसकी अंग्रेजी शस्ता और अंदाज बेहद नरम था। हया ने महसूस किया कि तुर्क अस्सलाम वालेकुम की बजाय सलाम वालेकुम कहते हैं। वालेकुम सलाम। हया ने उसका बड़ा हाथ थामा तो उसे लगा उसने इतना नरम हाथ कभी नहीं छुआ। वो हाथ नहीं, गोया मक्खन का टुकड़ा था। मेरा नाम हाले नूर है। मेरा ताल्लुक रोमी फॉर्म से है। मैं सबांजी से मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग में एमएस कर रही हूँ। एयरपोर्ट पर लेने भी आपको मैंने ही आना था, मगर मैं कहीं फंस गई थी, इसलिए नहीं आ सकी। बहुत माजरत। उसने कार वापस मोड़ दी थी। मैं हया सुलेमान और मैं खतीजा राना। उनके तारुफ को हाले नूर ने अपने मखसूस मुस्कुराहट के साथ सुना और सर इस बात में हिला दिया। वो वाकई नूर का हाला थी, धुली हुई चांदनी। अब हम अंसारी मोहल्ले जा रहे हैं, वो स्टीयरिंग व्हील घुमाते हुए कह रही थी। मोहल्ला? उर्दू वाला मोहल्ला हया? डीजे ने धीरे से सरगोशी की। शायद तभी तो कहते हैं कि उर्दू तुर्की से निकली है। तुमने मैट्रिक में उर्दू जबान के मजमून में इस फिक्रे को रटा नहीं था कि लफ्ज उर्दू तुर्क जबान से निकला है, जिसके मैनी लश्कर के हैं। डीजे ने चहककर फिक्रा मुकम्मल कर दिया। अयूब सुल्तान जामिया के बैरूनी बाजार का नाम ही अंसारी मोहल्ला था। बेहद रश, बहुत से लोग और हर सू उड़ते कबूतर। वो तीनों लोगों के दरमियान बमुश्किल रास्ता बनाती मस्जिद के अहाते की तरफ पहुंची। नमाज से फारिग होकर हया ने देखा वहां जामे का नाम अयूब सुल्तान सामी लिखा था। उसने सोचा कि जामे में जे की जगह सी लिखा है, जो कि गलत लग रहा था। हमारी जबान में सी को अरबी के जीम की आवाज से पढ़ा जाता है। इंसारी मोहल्ले के रश से गुजरते हुए उसकी हैरत पर हाले ने बताया। वो मुस्कुराती हुई बड़े एतमाद से अपने सफेद कोट की जेबों में हाथ डाले चल रही थी। उसकी बात पर हया बेख्तियार चौंकी। हैरान क्यों हो? हाले ने रुक कर शॉपर से अपने जूते निकालते हुए उसे देखा। वहां मस्जिद में दाखिल होते हुए जूते बाहर रखने की बजाय शॉपर में रखने और अपने साथ शॉपर हमा वक्त उठाए रखने का रिवाज था। अगर किसी का नाम जहान हो तो वो तुर्की में कैसे लिखा जाएगा? बिला इरादा उसके लबों से निकला। फिर फौरन गड़बड़ा कर डीजे को देखा। वो जरा फासले पर कबूतरों की तस्वीर खींच रही थी। उसने नहीं सुना था। हाले नूर शॉपर को डस्टबिन में फेंक कर सीधी हुई और मुस्कुराकर हिजे बताए CIHAN। ओह, उसने खफीफ सा सर झटका। तभी वो उसे फेसबुक पर नहीं मिला था। वो उसको JIHAN लिखकर ढूंढ रही थी, मगर वो तो अपने नाम को CHIAN लिखता होगा। गली साफ सुथरी और कशादा थी। दोनों अतराफ में दुकानों के दरवाजे खुले थे। आगे कुर्सियां मेज बिछी थीं। इर्द गिर्द बहुत से स्टॉल लगे थे। सड़क के किनारों पर खुले आम कुत्ते टहल रहे थे, मगर वो भौंकते नहीं थे। हया को भूख लग रही थी और वो अब इस सफरनामे से बोर होने लगी थी।
बमुश्किल वो तीनों उस रश भरे मोहल्ले से निकली। एक्सचेंज स्टूडेंट्स को पहला खाना एक तुर्क मेज़बान ख़ानदान दिया करता है और अभी हम इसी मेज़बान ख़ानदान के घर जा रहे हैं। जब वो कार में बॉस्फोरस के पुल पर गुजर रही थी तो हॉले ने बताया। खाने का सुनकर उस पर छाई बेजारियत जरा कम हुई। मेज़बान ख़ानदान का घर इस्तांबुल के एक पोश इलाके में वाक़ था। कुशादा सड़क, खूबसूरत बंगलों की कतार और बंगलों के सामने सब्जे पर जमी बर्फ। उनके स्कॉलरशिप कोऑर्डिनेटर ने चंद बातें उन्हें ज़हन नशीन करवा दी थी कि तुर्की में जूते घर से बाहर उतारने होते हैं, घास पर नहीं बैठना होता और मुलाकात के वक्त तुर्क खानदान के बड़े का हाथ चूमना है। इसकी जरूरत नहीं थी, इस तकल्लुफ को रहने दो। इन दोनों ने घर के दाखिली दरवाजे के बाहर बिछे मैट पर जूते उतारे तो अंदर से आती वो मुशफिक सी खातून प्यार भरी खफगी से बोली थी, पहले दिन कोई असूल नहीं होते, अस्सलाम वालेकुम और तुर्की में खुश आमदीद। आपके असूलों की पासदारी में हमारे लिए फख्र है। हया ने मुस्कुराते हुए उनका हाथ थामा और सर झुकाकर उनके हाथ की पुश्त को लबों से लगाया। मिसिज अब्दुल्ला का चेहरा खुशी से दमक उठा। अंदर आ जाओ। वो रास्ता देने के लिए एक तरफ हटी। उनके सुर्ख बालों वाली बेटी आगे बढ़ी और कारपेट शूज हया और डीजे के कदमों में रखे। वो रेशमी कपड़े से बने कोट शूज की शक्ल के जूते थे। दोनों ने झुककर वो जूते पहने और अंदर दाखिल हुई। उस तुर्क घर का फर्श लकड़ी का बना था। लॉन्ग रूम के फर्श पर बहुत खूबसूरत कालीन बिछे थे। वो बाथरूम हाथ धोने आई तो देखा वहां अलग से टूटी वगैरह नहीं थी, बल्कि एक तरफ कतार में नल लगे थे। अलबत्ता बाथरूम के फर्श पर भी पायदान और काउच बिछे थे। हैरत अंगेज। वो वापस आई तो डाइनिंग हॉल में खाना लगाया जा रहा था। डीजे झुककर प्यार से मिसेस अब्दुल्ला की 6 साला नवासी उर्वा के साथ खेल रही थी। वो 3 खवातीन पर मुश्तमिल छोटा सा कुंबा था और चूंकि वो दोनों लड़कियां थी सो हाले ने ऐसे तुर्क खानदान का चुनाव किया था जिसमें कोई मर्द ना हो। उसी पल मिसेस अब्दुल्ला सूप का बड़ा सा प्याला उठाए आईं। हाले उनकी मदद करवा रही थी। तुम क्या कह रही थी कि तुम्हारा यहाँ कोई रिश्तेदार भी है? उन्होंने सूप का डोंगा मेज पर रखा। हया ने एक नजर उस मलगूबे को देखा। जी मेरी फुप्पो हैं इधर। वो सूप को ही देखते हुए बोली, किधर रहती हैं? इधर। उसने पर्स से वो मुड़ा तोड़ा कागज निकाल कर हाले को थमाया। हाले ने एक नजर इस कागज को देखा और फिर इस बात में सर हिला दिया। कल मिलवा दूंगी तुम्हें इनसे, खाना शुरू करो। उसने कागज वापस हया की जानिब बढ़ा दिया। डीजे हम वाकई तुर्की में भूखों मरेंगे। इस मलगूबे की शक्ल तो देखो, मुझे तो फिर से मतली हो रही है। हया जबरन मुस्कुराते हुए हौले से उर्दू में बोली। मिसिस अब्दुल्ला ने नासमझी से उसे देखा। ये कह रही है कि इन खवातीन का खलूस उसे शर्मिंदा कर रहा है। डीजे ने जल्दी से तर्जुमानी करते हुए मेज के नीचे से उसका पैर जोर से कुचला। ओह शुक्रिया। मिसिस अब्दुल्ला मुस्कुरा कर खाना पेश करने लगी। सूप दरअसल सुर्ख मसूर की दाल का शोरबा था और उर्दू जैसी तुर्क में इसे चोरबा कहते थे। वो जायके में शक्ल से भी बढ़कर बदमजा था। चंद लम्हों बाद ही दोनों पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट्स की बर्दाश्त जवाब देने लगी। हया मुझे उल्टी आने वाली है और मैं मरने के करीब हूँ। वो बदिक्कत मुस्कुराहट चेहरों पर सजाए चम्मच भर रही थी। तुर्क खवातीन बहुत मरगूबियत से सूप पी रही थी। चोरबा खत्म हुआ तो खाना आ गया, वो तो उससे भी बढ़कर बदमजा। एक चावलों का पुलाव था। पाकिस्तान में पुलाव को पे के ऊपर पेश के साथ बोला जाता है, मगर यहाँ इसे पे के तले जेर के साथ बोला जाता था। पुलाव शक्ल में उबले चावलों से मुख्तलिफ ना था। साथ चने का सालन और मुर्गी की ग्रेवी थी जो कि मंचूरियन के तरह दिखती थी। वो 1.5 दिन की भूखी थी और ऊपर से ये बदमजा खाने मजीद हालत खराब कर रहे थे।
वही तुर्क खवातीन ही खा रही थीं। पिलाव का प्याला भी खत्म हो चुका था और हम पाकिस्तानी मेजबानों के बरक्स वो उसे दोबारा भरने के लिए दौड़ी नहीं थी। वजह उनकी खलूस की कमी ना थी, बल्कि शायद यही उनका तरीका था कि प्याला एक ही दफा भर कर रखा जाता था। खदीजा, तुम्हारी दोस्त मुझे कुछ परेशान सी लग रही है, खैरियत? मिसिस अब्दुल्ला पूछ रही थी। डीजे ने गड़बड़ाकर उसे देखा। सब खाने से हाथ रोककर उसे देखने लगे थे। हया ने मेज तले आहिस्ता से अपना पाँव डीजे के पाँव पर रखा। कोई माकूल वजह बताओ इनको, हया ने कहा। नहीं, वो दरअसल हया बहुत डरपोक है। उसे स्ट्रीट क्राइम से बहुत डर लगता है और ये पहली दफ़ा अकेली बाहर यूरोप आई है, तो ये पूछ रही है कि कहीं इस्तांबुल में हमारा ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल से तो वास्ता नहीं पड़ेगा। हया सर झुकाए लब काटती रही। वो खाली हाथ उनके घर आई थी और उन्होंने मेज भर दी थी, फिर भी उसके नखरे खत्म होने में नहीं आ रहे थे। उसे बेहद पछतावा हुआ। वो बात संभालने पर डीजे की बेहद ममनून थी। कतन नहीं, इस्तांबुल बहुत महफूज शहर है, सुर्ख बालों वाली लड़की रसान से बोली। यहाँ की पुलिस ऐसे लोगों को खुलेआम नहीं फिरने देती। बिल्कुल, इस्तांबुल में कानून की बहुत पासदारी की जाती है, हाले ने तायद की। मिसिस अब्दुल्ला खामोशी से सुनती रहीं। उनके चेहरे पर कुछ ऐसा था कि हया इन्हें देखे गई। जब हाले नूर इस्तांबुल की शान में एक लंबा कसीदा पढ़कर फारिग हुई तो मिसिस अब्दुल्ला ने गहरी सांस ली। खुदा करे तुम्हारा वास्ता कभी अब्दुर्रहमान पाशा से ना पड़े। हया ने धीरे से कांटा वापस प्लेट में रखा। एकदम पूरे हॉल में इतना सन्नाटा छा गया कि कांटे की कांच से टकराने की आवाज सबने सुनी। कौन पाशा? डीजे ने उलझकर मिसिस अब्दुल्ला को देखा। वो मुंबई का एक स्मगलर है, यूरोप से एशिया असला स्मगल करता है। इस्तांबुल में अगर चिड़िया का बच्चा भी लापता हो जाए तो उसमें पाशा का हाथ होता है। बॉस्फोरस के समंदर में एक जजीरा है, ब्योक अड्डा। इस जजीरे पर इस माफिया का राज है और मेरी माम को ख्वाब आते हैं। इनकी बेटी ने खफगी से उनको देखा। ये लड़कियां समझती हैं मेरी अकल मेरा साथ छोड़ गई है। बिल्कुल ठीक समझती हैं। और एक्सचेंज स्टूडेंट, कान खोल कर सुन लो, हाले ने कदरे तल मिलाकर मुदाखलत की। इस्तांबुल में ऐसा कोई क्राइम सीन नहीं है। ये सब घरेलू खवातीन के अफसाने हैं। यहाँ कोई भारतीय स्मगलर नहीं है। दोनों तुर्क लड़कियां अपनी बात खत्म करके अब स्वीट डिश की तरफ मुतवज्जा हो गईं। खदीजा भी उनकी बातों पर मुतमईन होकर शक्कर-पारे खाने लगी, मगर हया के हलक में वो बहुत मीठे से शक्कर-पारे अटक गए। अबू ज़हबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उसने उस हबशी के मुंह से पाशा का नाम सुना था। वो निहायत मुज़महिल सा अपनी बीवी से अरबी में बात कर रहा था, मगर हो सकता है कि वो किसी और पाशा के काम का जिक्र कर रहा हो और वाकई तुर्क घरेलू खवातीन के अफसाने का मरकज पाशा उसका कोई वजूद ही ना हो। अलविदाई लम्हात में जब बाकी सब आगे निकल चुके थे तो मिसिस अब्दुल्ला ने धीरे से हया के करीब सरगोशी की। ये लड़कियां इस्तांबुल की बुराई नहीं सुन सकती। तुम्हें इसलिए बताया है कि तुम क्राइम से डरती हो और खूबसूरत भी हो। खूबसूरत लड़कियों पर अमूमन ऐसे लोग नजर रखते हैं। हया ने चौंक कर इन्हें देखा। उनकी झुर्रियों ज़्यादा चेहरे पर सच्चाई बिखरी थी। वो वाकई अपना वजूद रखता है। वो बिल्कुल सुन सी हुई उन्हें देखे गई। क्या अफवाहों का खौफ मुजस्सिम सूरत में उनके सामने आया हुआ था या उनकी अकल वाकई उनका साथ छोड़ रही थी?